जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। एवं बुद्धेह परम बुद्धवा संस्त भयात्मनामात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। लोक प्रसिद्धि से और शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। सुनने और पढ़ने से वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं। आत्मस्वरूप का सद्गुरु कृपा से अनुभव ज्ञान ही इस राग रूप काम को मारने का एकमात्र उपाय है। वास्तव में काम में अपना कोई बल नहीं है। यह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि मन और इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है, तथा जब तक बुद्धि मन और इंद्रियां अपने वश में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम को अत्यंत प्रबल माना गया है और दुर्जय कहा गया है। परंतु काम का यह दुर्जयत्व तभी तक है जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि मन और इंद्रियों को अपने वश में न कर ले। आत्मबोधम or spiritual consciousness is to be awakened. Following in its wake, the body, the senses, mind, and intellect have all to serve Atman. The base desire automatically vanishes, the little self dwindles away, the real self emerges. Bliss infinitude becomes patent, never again to be clouded. Life shines in the glory of Atman. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ ആത്മാവിനെ, അതായത് സൂക്ഷ്മവും അത്യുന്നതവുമായ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, ഹേ മഹാബാഹു, കാമരൂപത്തിലുള്ള അജയ്യനായ ശത്രുവിനെ നീ കൊല്ലുക. പ്രശസ്തിയും വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുമുണ്ടായിട്ടും ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിനെ പരമമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. കേട്ടും വായിച്ചും യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടാനാവില്ല. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയിലൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവപരമായ അറിവ് മാത്രമാണ് ഈ ആസക്തി പോലുള്ള കാമത്തെ കൊല്ലാനുള്ള ഏകമാർഗം. വാസ്തവത്തിൽ കാമത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ശക്തിയുമില്ല. ആത്മാവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതായി മാറിയ ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ആത്മാവിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതായി മാറുന്നു. ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നതുവരെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവയിലൂടെ കാമത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കാമത്തെ വളരെ ശക്തമായി കണക്കാക്കുന്നതും അതിനെ അജയ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ കാമത്തിൻ്റെ ഈ അജയ്യത നിലനിൽക്കൂ. పరమాత్మావ నీ తన్నే నిందే ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం ఈ విధంగా బుద్ధిని మించిన అనగా సూక్ష్మమైన బలవత్తరమైన అత్యంత శ్రేష్టమైన ఆత్మను తెలుసుకొని బుద్ధి ద్వారా మనసును వశపరుచుకొని, ఓ మహాబాహో, నీవు ఈ కామం అనేటువంటి దుర్జయ శత్రువును సంహరించు. లోక ప్రసిద్ధి చేతను శాస్త్రముల ద్వారా విని కూడా ప్రజలు ఆత్మ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైందని అంగీకరించటం లేదు. వినడం చేత గాని చదవడం చేత గాని వాస్తవ జ్ఞానం కలగదు. ఆత్మస్వరూపుడైన సద్గురు కృప చేయగలిగిన అనుభవ జ్ఞానమే ఈ రాగరూప కామమును సంహరించు ఒకే ఒక ఉపాయమై ఉన్నది. నిజానికి కామములో తనదంటూ ఏ బలము లేదు. ఇది ఆత్మిక బలముచే బలవత్తరమైన బుద్ధి మనసు ఇంద్రియముల్లో నిలవడానికి స్థలమును సంపాదించిన కారణంగా వాటి బలంతో ఇది బలము కలిగినదై ఉన్నది. ఎప్పటి వరకు బుద్ధి మనసు ఇంద్రియములు తన వశంలోకి రావో, అంటే ఆత్మవశంలోకి రావో, అప్పటి వరకు ఆత్మ యొక్క బలము కామమునకు లభిస్తూనే ఉంటుంది. అందుచేత కామమును అత్యంత ప్రబలమైనది అనుకోవడమైనది. అంతేకాక
దుర్జయమైందని కూడా చెప్పడమైనది. కానీ ఆత్మ తన యొక్క స్వరూపమును గుర్తించి మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియములను తన అధీనమును కావించుకున్నంతనే ఈ కామం యొక్క దుర్జయత్వము నశిస్తుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్. జై పరశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अशा प्रकारे बुद्धीच्या पलीकडे असलेल्या आत्म्याला म्हणजेच सूक्ष्म, शक्तिशाली आणि अत्यंत श्रेष्ठ ओळखून घेणे आणि बुद्धीने मनावर नियंत्रण ठेवणे. हे महाबाहू, तू काम रूपाच्या रूपात या अजिंक्य शत्रूचा वध कर. लोकप्रिय कीर्ती आणि शास्त्रामधून ऐकले असूनही लोक प्रत्यक्षात आत्म्याला सर्वोच्च मानत नाहीत. खरे ज्ञान ऐकून आणि वाचून मिळूच शकत नाही. सद्गुरूंच्या कृपेने आत्म्याच्या खऱ्या स्वरूपाचे अनुभवजन्य ज्ञान हाच या आसक्तीसारख्या वासनेला मारण्याचा एकमेव मार्ग आहे. प्रत्यक्षात कामाला स्वतःची कोणतीही शक्ती नाही. तो आत्म्यापेक्षा बलवान झाला आहे कारण त्याला बुद्धी, मन आणि इंद्रियामध्ये राहण्यासाठी एक स्थान मिळालेले आहे जे आत्म्यापेक्षा बलवान झाले आहेत. जोपर्यंत बुद्धी, मन आणि इंद्रिय त्याच्या नियंत्रणाखाली येत नाहीत तोपर्यंत आत्म्याची शक्ती त्याच्याद्वारे कामाकडे जात राहते. म्हणूनच वासना ही खूप प्रबळ मानली जाते आणि तिला दुर्जय, अजिंक्य असे म्हणतात. परंतु वासनेची ही अजिंक्यता केवळ तोपर्यंतच टिकते जोपर्यंत आत्मा त्याचे खरे स्वरूप ओळखत नाही आणि त्याची बुद्धी, मन आणि इंद्रिय आपल्या नियंत्रणाखाली आणत नाही. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. बुद्ध से भिन्न सूक्ष्म बलवान आ अतिश्रेष्ठ आत्मा के जान क अही बुद्ध से अपन मौन के वश में क हे महाबाहु, अहाँ अहि दुर्जय कामरूप शत्रु के नष्ट क दिया. लोक मान्यता आ शास्त्र सबसे सुनलाक बादो लोक सब आत्मा के वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानैत अछि. मात्र सुनबा आ पढ़बा से वास्तविक ज्ञान नहीं होइत अछि. आत्मस्वरूप के साक्षात्कार तो सद्गुरु के कृपा से प्राप्त अनुभव ज्ञान से होइत अछि. आ यह राग रूप काम के नष्ट करबाक एकमात्र उपाय अछि. वास्तव में काम में अपन कोनो बल नहीं अछि. ई तो आत्मा के बल से बलवान बनल बुद्ध, मन आ इंद्रिय में अपन स्थान बना लैत अछि आ एहि क्रम में ओहि सब के बल से बलवान बुझाइत अछि. जखन धरि बुद्ध, मन, इंद्रिय वश में नहीं भ जाइत अछि, आत्मा के शक्ति काम के प्राप्त होइत रहैत अछि. एहि कारणे काम के अति प्रबल मानल गेल अछि आ एकरा दुर्जय कहल गेल अछि. मुदा काम के ई दुर्जयत्व केवल तखने धरि अछि जाबे आत्मा अपन असली स्वरूप के नहीं चिन्ह लेत आ बुद्ध, मन आ इंद्रिय पर अपन नियंत्रण स्थापित नहीं करत. जखन आत्मा अपन महत्ता बुझि लैत अछि तखन ई दुर्जय काम रूप शत्रु स्वतः समाप्त भ जाइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.